Hello everyone, this is Achita and welcome to Pharmacopedia. Hope you all are doing well. So this is the part 3 of the chapter carbohydrate. So previous two parts में हमने देखा था कि what are carbohydrates and its classification, and in part 2 we have seen that what are monosaccharides and its properties and various important reactions regarding monosaccharides. Okay, so this is the part 3 and in this part we'll be seeing what are disaccharides, particularly जो आपके important disaccharides हैं वो हम देखेंगे एंड पॉलीसेकेराइड्स हम देखेंगे एंड द क्वेश्चंस व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स वील बी सीइंग दैट but before that the link of part 1 and part 2 will be provided in the description box. You can go and watch that. And yes, if you find my videos useful, then please do subscribe to my channel Pharmacopedia, as it motivates me to create such educational contents for you guys. Okay, so moving ahead, डाइसेकेराइड्स एज यू ऑलरेडी नो कि डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं. डाई मीन्स टू. जब क्या होता है कि दो मोनोसेक्राइड्स आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे तो उसमें जिस तरह का लिंकेज, जिस तरह का बॉन्ड आएगा उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस. ओके, सो मोनोसेक्राइड्स, जब दो मोनोसेक्राइड्स आपस में क्या करते हैं, जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अ डाइसेक्राइड इज फॉर्म्ड. वेरी सिंपल. अब ये जो डाइसेक्राइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं. इट इज ऑफन वाटर सॉल्युबल एंड स्वीट इन टेस्ट. When I talk about the disaccharides, तो disaccharides आपके टू टाइप्स के होते हैं. द फर्स्ट वन is the reducing sugars and the second one is the non reducing sugars. As the name suggests कि जो reducing sugars होंगे उसमें आपके क्या होंगे, फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होंगे. तो ऐसे डाइसेक्राइड्स जिसमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप आपके प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे reducing sugars. The example among this is the maltose and the lactose. And then we are having the non reducing sugars. नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, जिसके पास में कोई भी फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं होता है. सो इन दैट केस द एग्जांपल इज द सुक्रोज. व्हेन यू सी सुक्रोज, तो सुक्रोज में क्या होता है, कोई भी फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं होता है. दैट्स व्हाई ये किस कैटेगरी में आते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. Further, we are having the structure of the various disaccharides, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं सुक्रोज को. ठीक है, तो सुक्रोज किससे मिलके बनता है. सुक्रोज इज मेड अप ऑफ टू कंस्टिट्यूएंट्स. द फर्स्ट वन इज द ग्लूकोज एंड द सेकंड वन इज द फ्रक्टोज. सो इसमें जिस तरह के जो लिंकेजेस देखे जाते हैं वो है 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ठीक है, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज सीन इन द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज. व्हेन आई टॉक अबाउट maltose, तो maltose consists of two glucose units which is being linked together with the help of 1,4 glycosidic linkage. ठीक है, तो maltose में किस तरह का linkage आता है, 1,4 glycosidic linkage is seen in the maltose, because you can see here कि glucose का जो है the first carbon is linked with the fourth carbon of the next glucose units. ठीक है, फिर अब बात करते हैं lactose की. lactose is present in milk. Yes. So lactose is a disaccharide which is present in milk or found in milk, and lactose consists of two constituents. The first one is the galactose and the second one is the glucose. So the linkage which has been present here is the 1,4 beta 1,4 glycosidic linkage is seen in lactose. ठीक है, तो मेजर हमने जितने डाइसेक्राइड्स वो देख लिए. सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर प्रेजेंट. द लिंकेज इज अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. maltose में 1,4 glycosidic linkage is present, and lactose के केस में beta 1,4 glycosidic linkage is seen. This is just to explain कि कैसे हम linkages को देखते हैं या कैसे linkage present है. Talking about the sucrose, ठीक है, तो sucrose is often known as cane sugar. ये हम अपने day to day life में use करते हैं as a sweetening agent. So sucrose is known as the cane sugar. जब सुक्रोज की बात करते हैं, सो व्हेन यू लुक एट द सुक्रोज, ठीक है, तो सुक्रोज इटसेल्फ क्या होता है, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है. बट सुक्रोज जब हाइड्रोलाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम सच एज सुक्रेज या इन्वर्टेज या सुक्रेज, सो वो क्या हो जाता है, इट फॉर्म्स टू प्रोडक्ट्स. ठीक है, ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज. सो दीज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज products have the reducing actions. This is written over here कि जो सुक्रोज है वो itself क्या है, वो non reducing sugar है, but after hydrolysis this product have the reducing action. Talking about the next point, which is the inversion of sugar. This is very important from the competitive aspect also, and also from university exam point of view.
ठीक है? तो इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके ऐसे पूछे जा सकते हैं दैट लाइक राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इनवर्ट शुगर। सो फर्स्टली हम देखते हैं कि जो सुक्रोज का ऑप्टिकल रोटेशन है वो क्या है? इट्स 66.5 डिग्री एंड ये क्या करते हैं दैट आफ्टर हाइड्रोलिसिस, जब इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ग्लूकोज, जिसका ऑप्टिकल रोटेशन है 52.5 एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज जिसका ऑप्टिकल रोटेशन है -92 डिग्री। तो फिर क्या होता है, जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट की जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिवो रोटेटरी में। व्हाट आई मीन टू से इसकी जो सुक्रोज होता है उसका जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो है डेक्स्टो रोटेटरी। इट इज डेक्स्टो रोटेटरी इन नेचर, मीन्स इट लाइक it moves the plane polarized right to the right direction. बट जब इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है तो इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है? चेंज हो जाता है, दैट इट गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम द डेक्स्ट्रो टू द लिवो। ठीक है, तो इसका प्लेन ऑफ रोटेशन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है या इन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज which is formed is known as the invert sugar. I hope it is clear. और इसमें जो एंजाइम यूज होते हैं, द एंजाइम कैन बी सुक्रेस और द इन्वर्टेज। So whenever there comes the question that what are invert sugar, you can simply explain it like ki the conversion of the optical rotation of sucrose from dextrorotatory to levorotatory is termed as the invert sugar, and equimolar mixture of glucose and fructose thus formed is known as the invert sugar. Talking about the polysaccharides, okay, so polysaccharides को explain करने से पहले let me explain कि what are isomaltase. Isomaltase, it's also a type of disaccharides that is basically produced by the metabolism or the hydrolysis of the glycogen or the starch. बस इसमें जो linkage होती है वो होती है इसमें alpha 1,6 glycosidic linkage is seen in isomaltase. Talking about the polysaccharides, very simple. Polysaccharides, as I have already explained in part 1, कि ये आपके ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं, जो छोटे छोटे मोनोसेक्राइड्स क्या करते हैं, वो आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस के थ्रू क्या बनाते हैं? इकट्ठा होकर क्या बनाएंगे? एक पॉलीसेक्राइड्स। पॉली मीन्स मेनी, like it's like the repeating units of many monosaccharides together form the polysaccharides. तो ये जो polysaccharides है ये आपकी स्ट्रक्चर में लीनियर भी हो सकते हैं एज वेल एज इट कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो। एंड ये जो पॉलीसेक्राइड्स सच एज दैट ऑफ द स्टार्च एंड द ग्लाइकोजन, ये क्या करते हैं? ये एनर्जी को स्टोर करते हैं इंट्रासेलुलरली। व्हेन आई टॉक अबाउट दी होमोपॉलीसेक्राइड्स, जब मैंने पॉलीसेक्राइड्स आपको पार्ट 1 में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि इट इज ऑफन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दी होमोपॉलीसेक्राइड्स एंड दी हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स, और होमोग्लाइकेंस एंड दी हेटेरोग्लाइकेंस। होमो मीन्स यूनिफॉर्म, ठीक है, तो इसमें जो रिपीटिंग यूनिट्स होंगे वो सिमिलर होंगे, हेटेरो में डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट्स होंगे। लुक हियर, दिस इज द स्टार्च। सो स्टार्च का जो मेजर जो स्टार्च होती है वो क्या होते हैं? इट इज लाइक द स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ प्लांट किंगडम, एंड इसके जो सोर्सेज होते हैं वो है पोटैटो, सीरियल्स में सच एज राइस एंड व्हीट. And when you look at the structure of starch, so it is basically composed of amylose and the amylopectin. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि वाइवा में भी कभी कभार पूछे जा सकते हैं कि स्टार्च के कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं. सो इट इज द अमाइलोज एंड द अमाइलोपेक्टिन. अब अमाइलोज क्या होते हैं? अमाइलोज में होते हैं आपके ग्लूकोज यूनिट्स, ग्लूकोज की रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं. तो इसमें जो बॉन्ड्स आपको देखनी है, जो लिंकेज आपको देखने को मिलेगी वो है अल्फा 1,1,4 glycosidic linkage is found in amylose. एंड जो आपके insoluble पार्ट होते हैं इट इज नोन एज दी अमाइलोपेक्टिन. इसके अंदर जो लिंकेज होते हैं वो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, दैट इज द ब्रांचिंग लिंकेज. क्या होता है? सो फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग अ बॉइलिंग वाटर, ठीक है, इस बॉइलिंग वाटर में अगर हम स्टार्च को डाल देंगे सो अबाउट 10 to 20% ऑफ दी जो सोल्यूबलाइज्ड पार्ट होती है, सोल्यूबलाइज्ड पार्ट इज नोन एज दी अमाइलोज. अब जो अनडिजॉल्व या इनसॉल्युबल पार्ट होता है जो बेसिकली वाटर को एब्जॉर्व कर लेता है और पेस्ट लाइक या जेल एक फॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन. Therefore, starch is formed by a soluble amylose and insoluble amylopectin. Here you can see the complete structure of the starch.
we are having the amylose having the repeating glucose units linked by 1,4 glycosidic linkage, and here we are having the amylopectin which is linked by 1,4 glycosidic linkage, that is the branching point. Talking about the glycogen, we all are familiar with this term glycogen, yes or not? Yes. Glycogen क्या होता है? It is a reserve form of carbohydrate within the animal kingdom. अब ये जो ग्लाइकोजन होते हैं वो क्या होते हैं? इट इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की जो रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं वो उसको क्या बोलेंगे? हम ग्लाइकोजन बोलेंगे। अब ग्लाइकोजन के अंदर आपको क्या होते हैं? आपको दो तरीके के लिंकेज देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज द अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दैट इट इज इन द लीनियर फॉर्म, एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो आपके ब्रांचिंग पॉइंट में देखने को मिलते हैं। सो ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन द लिवर एंड द मसल्स। सो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज समवट लाइक दिस, कि ग्लूकोज की एक लीनियर रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं which are linked together, linked to each other with the help of अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एंड जो इसकी ब्रांचिंग पॉइंट होती है उसमें आप देखेंगे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज is being present. So this is like the structure of glycogen. When I talk about the cellulose क्या होते हैं? Cellulose जो होते हैं वो आपके supporting tissues होते हैं of the plant, जो plant को support provide करते हैं। ऐसे tissues किससे मिलके बने होते हैं? Cellulose से मिलके बने होते हैं। इसमें किस तरह के linkage पाए जाते हैं? इसमें beta 1,4 glycosidic linkage is found in the cellulose, and it is also having a repeating units of glucose. जो ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसको हाइड्रोलाइज कौन से एंजाइम कर सकते हैं? इसको हाइड्रोलाइज बेसिकली आपके जो एंजाइम कर सकते हैं वो है सेलोबाइज। सेलोबाइज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल टू हाइड्रोलाइज दिस बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऑफ सेल्यूलोज। बट एक जो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे देखने लायक वो ये है कि ये जो एंजाइम है ये एब्सेंट होती है एनिमल में और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो इसलिए ये बोला जा सकता है कि सेल्यूलोज क्या होता है? इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमंस, बट ऐसा कह सकते हैं कि आपके इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो होते हैं वो कुछ ऐसे एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से आप सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के केपेबल होते हैं। बट बिफोर डिस्कसिंग दी हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स, दो two important terms are here. The first one is the inulin. Inulin, do not get confused with the insulin. It is the repeating units of fructose. Fructose की जो repeating units होती हैं उसको हम बोलते हैं inulin. It is useful in the diagnosis of the renal functions or such as the GFR or the glomerular filtration rate. And the second one is the dextrin. So dextrin क्या होते हैं? Dextrin basically आपके होते हैं plasma volume expanders. Plasma volume expanders, and it is used in case of hypovolemic shock. Hypovolemic shock के केस में ये डेक्स्ट्रिन को यूज किया जाता है एज अ प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपैंडर की तरह. सो दीज टू आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ homopolysaccharides, and chitin is also there which forms the exoskeleton of insects. टॉकिंग अबाउट द हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स. सो हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स में जो आपके आते हैं वो आते हैं, फर्स्ट वन इज द अगार एंड द अगैरोज. अब ये अगार क्या होती हैं? अगार यू विल बी लाइक यूजिंग इट इन माइक्रोबायोलॉजी or you'll be studying it in microbiology. So agar is made up of the galactose. हम इसकी केमिकल कंपोजिशन देख रहे हैं. So it is made up of galactose and the glucose. एंड जो अगार होते हैं इट इज़ लाइक इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड विद दी बाय द बैक्टीरिया, इसीलिए हम अगार को का इस्तेमाल करते हैं लाइक कल्चर मीडिया बनाने में in order to grow the bacteria. So agar is basically used as a gelling agent in order to form the culture media, and agarose is made up of the galactose and hydrogalactose. So it is also a type of heteropolysaccharide. बट अब जब हम बात करते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग दी पॉलीसैकेराइड्स. पॉलीसैकेराइड्स में कभी भी जब क्वेश्चन आ सकता है वो यहीं से उठ के आ सकता है दैट व्हाट आर पॉलीसैकेराइड्स. यू राइट एड अ नोट ऑन पॉलीसैकेराइड्स एंड डिफाइन म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट in terms of polysaccharides.
So what are these mucopolysaccharides? Mucopolysaccharides also known as glycosaminoglycans. Remember कि mucopolysaccharides को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस। ये क्या होते हैं? ये हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? जिसमें यूरोनिक एसिड प्रेजेंट होती है एज वेल एज अमाइनो शुगर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। रिमेंबर जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो आपके ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस भी होते हैं एंड इट इज अ हेट्रोपॉलीसैकेराइड जिसके अंदर यूरोनिक एसिड एंड अमीनो शुगर्स आर प्रेजेंट। It is isolated from mucin and therefore it is known as mucopolysaccharides। और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का कॉम्बिनेशन प्रोटीन के साथ में क्या कहलाता है? म्यूकोप्रोटीन्स। म्यूको मीन्स म्यूकोपॉलीसैकेराइड, प्रोटीन्स as such is a protein। When you see the mucopolysaccharide, it contains एसिटाइलेटेड अमीनो ग्रुप्स। उसके अंदर एसिटाइलेटेड अमीनो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं या सल्फेट भी प्रेजेंट हो सकते हैं या कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स भी इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज चार्ज ग्रुप्स, ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो क्या है? चार्ज ग्रुप्स हैं। ये चार्ज ग्रुप क्या करते हैं? वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड वाटर की तरफ अपने आप को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे तो फिर ये क्या बना लेते हैं? एक विस्कस सॉल्यूशन बना लेता है एंड देयरफॉर इट इज नोन एज द म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, अब बात करते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस। डोसिस मींस समवॉट रिलेटेड टू द क्लिनिकल एस्पेक्ट। सो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की जब यूरिन में एबनॉर्मल अमाउंट एक्सक्रीट होने लगती है due to a group of lysosomal storage disorders, these are known as mucopolysaccharidosis। When mucopolysaccharides are excreted in the urine in a certain abnormal amounts due to a group in the group of lysosomal storage disorders, that is known as mucopolysaccharidosis। So it can be detected with the help of 2D gel electrophoresis technique that you'll be studying later on when we will be discussing further units of biochemistry। Now examples of mucopolysaccharides, this is very important। ये आपके वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं कि लाइक नेम दी म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके हैं वो है हिपैरिन, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, डर्मेटन सल्फेट, केराटिन सल्फेट एंड द hyaluronic acid। The first one is the heparin। We all are familiar with this term heparin। Yes, it is an anticoagulant। heparin is a natural anticoagulant। जब आप हेपारिन के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें सल्फेटेड ग्लूकोसामीन प्रेजेंट होते हैं एंड इट आल्सो कंटेन्स अल्फा 1,4-L आइडोयूरोनिक एसिड। So here what is it? It is sulfated glucosamine and this is the alpha 1,4-L idouronic acid। So this is the repeating unit of heparin। heparin इनके repeating unit से बने होते हैं and heparin is like natural anticoagulant। So it can also be used in vitro investigation of the blood। Talking about the chondroitin sulfate, C for chondroitin sulfate and C for cartilage। So this chondroitin sulfate is found in cartilages, bones, tendons, and it is like formed of the D-glucuronic acid and 1,3-N acetyl galactosamine 4 sulfate। So इसकी ये repeating unit से आपके chondroitin sulfate बनते हैं। लेट मी टेल यू कि ये जो आपके रिपीटिंग यूनिट्स हैं ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है एंड लाइक यू कैन नॉट रिमेंबर इट ऑल्सो, ये भी चीज है। सो इट्स जस्ट हियर टू एक्सप्लेन यू कि हाँ इनकी स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं या ये कैसे दिखते हैं। जस्ट टू गिव यू अ पिक्चर, आई एम जस्ट हैविंग दिस इमेजेस ऑफ दी स्ट्रक्चर्स सो दैट यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड कि किन किन रिपीटिंग यूनिट से बनते हैं। टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन, केराटिन सल्फेट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये ओनली ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस हैं जिसमें यूरोनिक एसिड नहीं प्रेजेंट होते हैं। स्टार मार्किंग इट, $1 million क्वेश्चन। सो ये केराटिन सल्फेट is the only glycosaminoglycans which does not contain any kind of uronic acid। यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उठ के आपके आ सकते हैं। सो रिमेंबर दिस। सो इट इज फाउंड इन कॉर्निया एंड द टेंडन्स। इसमें जो रिपीटिंग यूनिट्स देखे जाते हैं वो है गैलेक्टोज एंड नैग in terms of beta linkage। Now we are having the dermatan sulfate, dermatan related to the skin, derma। So it is found in the skin, blood vessels and the heart valves and it also contains idiuronic acid and the N-acetyl galactosamine in beta 1,3 linkages। Talking about the fifth one which is the hyaluronic acid। So hyaluronic acid आपकी जो पाए जाते हैं वो आपके connective tissues में देखे जाते हैं, tendons में, synovial fluid में and the vitreous humor of the eye।
सो इट सर्व्स एज अ लुब्रिकेंट इन टर्म्स ऑफ जॉइंट कैविटीज। आपके जो जॉइंट्स होते हैं ना, सो जॉइंट्स के बीच में क्या होता है, सॉर्ट ऑफ लाइक कुशन या एक लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस भी होता है। सो दिस hyaluronic acid acts as a lubricating substance between the joints. So it is also composed of N-acetyl glucosamine and beta-1,4-glucuronic acid, and also it contains N-acetyl glucosamine. So इनकी रिपीटिंग यूनिट्स आपके क्या होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड बनते हैं। Talking about the glycoproteins and the mucoproteins. So what are glycoproteins? So firstly क्या होता है, जब कार्बोहाइड्रेट आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़ी हुई होती है, पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड लिंकेज आपके किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स के अंदर। प्रोटीन्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। सो वेरियस अमीनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर विद द हेल्प ऑफ दिस पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज इज सीन, सो जिसकी वजह से आपके प्रोटीन्स बनते हैं। सो व्हेन दिस कार्बोहाइड्रेट इज लिंक्ड with this polypeptide chain, it is termed as proteoglycan. And if the carbohydrate content is less than 10%, इसी प्रोटियोग्लाइकन में अगर आपकी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट अगर लेस देन 10% है, इट इज टर्म्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन, एंड इफ द कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इज मोर देन 10%, इट इज टर्म्ड एज म्यूकोप्रोटीन। रिमेंबर कि अगर कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट 10% से लेस है, सो उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। इफ इट इज मोर देन 10%, इट विल बी टर्म्ड एज म्यूकोप्रोटीन्स। नाउ बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल किससे मिलके बना होता है, इट इज लाइक फॉर्म्ड बाय द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ये मैंने आपको यहाँ पे क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये फार्माकोलॉजी में आप पढ़ेंगे कि जो बैक्टीरियल के सेल वॉल हैं वो आपके किससे बने होते हैं, बैक्टीरियल और पर्टिकुलरली प्रोकैरियोट्स के जो सेल वॉल होते हैं वो आपके किससे मिलके बने होते हैं, वो मिलके बने होते हैं NAM, that is N-acetyl muramic acid and N-acetyl ग्लूकोसामीन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, सो दीज टू आर बेसिकली अ पॉलीसैकेराइड। ये क्या होते हैं, ये पॉलीसैकेराइड होते हैं। सो यू माइट बी फेमिलियर विद दिस एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। फर्स्ट आइसोलेटेड एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन। यहीं से आपका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा कि क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। सो ये जो पेनिसिलिन है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, इट्स लाइक अ बैक्टीरियोसिडल इन नेचर। So it actually inhibit the synthesis of these two polysaccharides, NAM and NAG. So here you can say that कि जो penicillin है, penicillin actually inhibits the synthesis of the polysaccharide and N-acetyl muramic acid and N-acetyl glucosamine, and that's why it is easier to show the bactericidal activity by the penicillin. So this is the importance of the penicillin and the polysaccharide which has been present in the bacterial cell wall. Okay, so this was all about the disaccharides and the polysaccharides. Let me just give you a review, like quick review. हमने सबसे पहले देखा था कि पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं। डाइसैकेराइड्स हमने सुक्रोज पढ़ लिया, लैक्टोज, माल्टोज एंड द इनवर्ट शुगर इज इंपॉर्टेंट। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स में आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, एंड इसके अंदर आपके हेपारिन, कॉन्ट्रैक्टिन सल्फेट, इसके लोकेशन आपको याद रखने की। बेसिकली अब जो कॉन्ट्रैक्टिन सल्फेट है, कैरेटिन सल्फेट है, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, लाइक स्किन में कौन से हैं, लाइक आपके कार्टिलेजेस में या बोन्स में कौन से प्रेजेंट होते हैं। सो इन दैट केसेस दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट। मैंने आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी एक्सप्लेन किया है, बट जो मैंने आपको बताया कि हाँ इंपॉर्टेंट है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट, एंड रिमेनिंग इज जस्ट टू मेक यू लाइक आपकी कॉन्सेप्ट क्रिएट करने के लिए एक्सप्लेन की गई है। सो आई जस्ट होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होंगे, दैट यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। And yes, thank you so much for watching this video. Do not forget to like, share and subscribe to Pharmacopedia. And yes, do share it with all your friends. And yes, keep studying. मिलते हैं next video में. Till then, take care.